other times we call it as evangelical. So those who will spread the word without any hesitation to everybody. So you might have seen some clients coming who are like extremely enthusiastic and extremely appreciative about your services and treatments. So for them, uh, so first get, though they are like verbally ready to give a testimonial, it is always better to take a written consent of the client. So just write in a, it can be in a simple notebook also. So I hereby give my consent to use the testimonial that is being recorded on so and so date in social media or any other platforms for promotional or educational purposes. So simple. If this line is there, then it becomes very easy, and it becomes a hardcore document for you to keep, so that you will be legally doing the right thing. So I mean, doing the legal right thing is always the first important thing to do. So once after that, uh, it is very ideal if the if the client is willing to give a video testimonial. So always video testimonial has bigger impression on other general public rather than the written testimonial. If the client is shy, then at least you can make the client to give the written testimonial. It's always fine. So but the patient should be ready to share his name, and probably so just the testimonial that I went to say Dr. Jayesh Thakur's clinic, and I was having osteoarthritis for 2 years. But within a month of Jayesh Thakur's clinic's treatment protocols and medicines, my osteoarthritis is gone, and I was not able to walk at all. Now I can run for 5 kilometers. So this is just a written example of a written testimonial. So written testimonial with just name is the primary basic one. If they're willing to give the photo of the patient to you, then it becomes a second better point, meaning the photo of the patient, maybe before treatment and after treatment photos, if you can get that. And the written testimonial is the second degree, or the higher degree of testimonial. The highest testimonial is the with a video clip. So this is also very tricky to take the video testimonial, because the patient will be ready, but he'll not be able to talk his way through to the testimonial. So first one is that whatever the camera that you use, it should not be shaking. The room in which you are taking the testimonial should be very calm, quiet, and it should be well lit. Nowadays in Amazon, if you want to buy, there is this 1,000 or 1,500 rupees. You can get a ready-made flashlight, which you can keep it on the table, so that the face of the client becomes very well lit, and it will not show any shadows. So with that setup, when the client starts talking, initially when he's talking, he will not be in his flow. So you may conduct this whole testimonial session in the form of an interview. So start asking question. What is your name? Then how long have you been, what is the suffering that you are having while coming to this clinic? Then what was the how long was that? Then so once you ask 2 or 3 questions, then the patient will get into the rhythm. Then collect the testimonial in detail, and then once you record the testimonial, get the written consent of the patient to post it in Facebook and video, YouTube and different other social medias, then you can use it. So that is one way of using the testimonial. Another common way that we often neglect is the Google review system. So you can do a test by yourself. So whatever your business name is, just your clinic name is, for example, uh, a Med Pharma person is there. So search for Med Pharma. So search for your own clinic in the Google search. Google search. Do a search for that, and how and where it is looking, whether your address is correct or not, whether your phone number is correct or not. So have you given your email in the Google search or not? So all this become very important
important, because if your email address is wrong, so sometimes these hackers and some other black hat SEO techniques fellows, what they do is they will give their own number. So this was happening in the Zomato and the Swiggy and all. So they will instead of the hotel number, they will manipulate it and they will put the robbers, they will put their number and they will collect the money through Google Pay and all. So that should not happen with your clinic. So always self-test about your name, whether it is Dr. Pawan Sharma or Dr. Atanu Roy, whoever he is. Self-test your name, self-search your name in the Google and check that all the things are in proper order. So your name, your clinic address, phone number, and the email ID and the website. So all those things should be properly looking. And if something is not properly looking, if the Google is not showing it, suppose Google in the Google Maps, your clinic is not well positioned, or in the Google Maps, the description itself, the description is not right. So then you can you can claim that particular business as your business. So it is a feature called as Google My Business. So using this feature, you can claim your business or your hospital and edit whatever you want to edit. So make sure that anybody who does not know you but who wants to come to you is can come to your business place, can come to your hospital very easily through the Google using Google Maps. So make the map perfect, give all the contact address, everything perfectly, so that it's where your hospital is very well represented. So another point is that while you are taking the Google map, so while you are taking the testimonial, you can keep this your Google business page open in your smartphone, and you can ask the client as the patient to give testimonial directly in the Google. So you can just check it with any hospital or any hotel that you search. Usually in the initial few search results that you see will be of uh, different hotels. Suppose you want to search best hotel in Delhi, so Google will naturally give you a few hotels addresses with their reviews there. So suppose you have a clinic of your own, and say Dr. Lakshmi Das has a clinic of her own, and this is say Dr. Lakshmi Das clinic, and it has specialties and it has a rating of say 4.5 star, of 50 ratings of 4.5 star out of 5. So it is a very good rating, and many people will be willing to go there. Suppose if the Google testimonial rating is just 1 or 2 stars for some other doctor, it gives a very bad impression right away. So anybody nowadays, it has become so common that anybody who would want to come to your clinic will do a search about you and your clinic in the Google, and then only they will come. So if you keep on adding good testimonials to you directly, if you are keep on encouraging the patients to leave good testimonials directly in the Google review system, then it becomes a very good repository. And so this is one of the things that this Ola and Uber people, Uber drivers do. This is a trick that they do. So as soon as they drop you at your dropping location, soon after, just before you are going, they will request you to give a review then and there only in the Ola or Uber app. So when the client is there, when the business person is there in front, you will be hesitant to give a lesser review to the Ola or Uber driver, and you will be kind of forced to give a good review only. So similarly, when you ask your patients to give a review in front of you, they will be kind of emotionally bound to give a good review, to this one with a little bit of description. Suppose somebody says that they came to your clinic and their say cancer or heart disease was it was very bad, now it is 90% improved. So that leaves a good impression in the patients who are searching. So and my last point on this topic is regarding the
usage of websites. So it is it is easy to build a website, but it's hard also for some people, because many people will not be knowing coding, and they'll many busy Ayurveda doctors will not be having any free time at all to build their own websites. So if you want to build a website nowadays, the technology has become so easy. And initially when I was building my own Easy Ayurveda blog, it was really hard and all. But now for an annual fees of 10 to 15,000 rupees, any web developer near you who has a good company can build a good website for you. So another point that I want to make here is, so never catch hold of an engineer, software engineer who is not attached to a web developing company. Meaning, do not directly approach an engineer to build your website. So it is a very common phenomena that some engineer who is some software engineer who will offer, maybe he is one of your patients, who will offer you to build a website. He will build the website, but soon after building the website, he will be busy, or he will get a job and he will go away. Then you will be stuck with no one to handle the website in your hand. So I have seen many cases that they suppose Dr. Say Dr. Hirdesh Saxena is there. So suppose drhirdesh.com, it is launched, the URL is taken, and a website is built. After 1 year, if that software engineer runs away, I mean, he was your patient, or he got transferred to a different location, and that engineer is gone. You'll not be even able to renew the domain name, so that your domain name is very precious, and that will be lost. So always go to a website company rather than just a single person handling the entire thing. So if there is a company, then one thing will be that the price will be very low that we'll offer. So 10 to 15,000 rupees per year is good enough money, and reasonable price to build a website for you. And another thing is that within the company, one engineer leaves the job, another engineer will be there to take the job. So it will be kind of a stable business relationship with you uh, and the website building company. And another thing is that they even this social media management also can become really hectic. The video has to be recorded, it needs to be uploaded, how many have seen, how many have not seen. Facebook has its own promotion program, YouTube has its own promotion program. All this can become really difficult. So what you can do is, you can hand over this social media promotions, all these things directly to the website company itself, that particular website company itself. So that website company itself is building your website, so they will also do the marketing also. Usually marketing executives will be there attached to that, and you can keep a monthly budget of say 3,000 to 5,000 rupees, so that your all your social media posts are going on, your YouTube videos, all those things are getting posted on a regular basis. So these are all a few techniques you can follow. And so I was given 20 to 30 minutes. I think I have utilized that. So if you have any questions, I will be happy to answer. Excellent, doctor. Excellent. Within a brief, you have covered all the points necessary to Ayurvedic doctors. Great. Nicely explained. Welcome. I will trouble you in future webinars also. Now I would like to request Dr. Prabodh Yerawar, Assistant Professor, Department of Sanhita and Siddhant, Faculty of Ayurveda, Uttarakhand Ayurveda University, Dehradun. So I would like to welcome Dr. Prabodh. Innovate Ayur Tunes. He has created Ayur Tunes, animated Ayurveda teaching series. So he will also be able to highlight aspects of whatever animation point is there. I would like to welcome Dr. Prabodh Yerawar. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. I am thankful to the organizers for giving me this opportunity to present my views about animations in Ayurveda. I will use both languages, English and Hindi,
wherever it is convenient. So first let me share my PPT. I think, am I audible? Yes, clearly. Yes, clearly. Okay. So my topic for today is animation for Ayurveda, a new topic, definitely new topic in the field of Ayurveda. आयुर्वेद उस जमाने से है, मैं हिंदी यूज कर सकता हूँ ना सर? हाँ। ओके। आयुर्वेद उस जमाने से है, आयुर्वेद की टेक्स्ट जो हमने देखी है जब से हम आयुर्वेद में आए हैं, काले अक्षर और सफेद पन्ने, इनके अलावा कुछ भी नहीं, ना डायग्राम, ना टेबल्स, ना फ्लो चार्ट्स, ना ड्राइंग्स, ना फोटोज। वही अगर आप एलोपैथी की बुक्स देखेंगे उसमें कई सारे इमेजेस, कई सारे डायग्राम्स, कई सारे फोटोज सब होता है। और आयुर्वेद की बुक्स केवल प्लेन इंग्लिश, प्लेन हिंदी या प्लेन रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी गई टेक्स्ट। तो आयुर्वेद में एनिमेशन लाने के लिए जब मैंने सोचा, जब ये थॉट आया, जब मैं बीएमएस में था तो हमारे सर से मैं पूछता था कि क्यों बुक्स ऐसी है आयुर्वेद की, इसमें कोई इमेजेस क्यों नहीं है, इसमें कुछ क्यों नहीं है। तो मेरे सर कहते थे जब तू बड़ा हो जाएगा तब अपने बुक में इमेजेस डालना, इसमें आइडियाज डालना। तो मैं उनके इसी डायलॉग को आगे दिमाग में रख कर इस पद पर चला और जो बुक भी बनाई, खासकर पदार्थ विज्ञान की बुक, उसमें इमेजेस कभी नहीं थी, उनमें कई सारी इमेजेस डाली, कई सारे क्लिनिकल एग्जांपल्स डाले। पर यहाँ तक मेरी सोच सीमित नहीं रही, इसके आगे भी सोचा कि क्यों ना आयुर्वेद में एनिमेशंस ऐड किए जाए। थोड़ा सा टेक्निकल हैंड स्ट्रांग पहले से ही था। सभी लोग, मैक्सिमम लोग, 80% लोग गलती से आयुर्वेद में आते हैं, मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ। बट जो नॉलेज पहले था उसको आयुर्वेद में कैसे अप्लाई किया जाए, उसके पीछे मेरी सोच थी। तो उसी की एक उपज जो थी वो थी आयोटून्स, जिसके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे ही। बट कुछ एनिमेशंस के बेसिक्स भी हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। इससे पहले हमने इजी आयुर्वेद, डॉक्टर हेबर्स का इजी आयुर्वेद सुना, इस प्रेजेंटेशन में हम इजी एनिमेशन भी देखेंगे। तो कंटेंट्स क्या होंगे इस प्रेजेंटेशन के? व्हाट इज एनिमेशन, स्कोप ऑफ एनिमेशन इन आयुर्वेद, डिफरेंट एनिमेशन एप्लीकेशंस। अब ये डिफरेंट एप्लीकेशंस ये फ्रीली अवेलेबल एप्लीकेशंस है ओवर द इंटरनेट, और इजी टू यूज ऐसे एप्लीकेशंस को ही मैं डिस्कस करूंगा। ज़्यादा हम एडवांस एप्लीकेशंस पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे फील्ड है भी नहीं। जितनी हमारी अप्रोच है उतने ही एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। यूजिंग पावर पॉइंट एज बिगिनर्स टूल फॉर एनिमेशन, ये थोड़ा नया है। पावर पॉइंट जनरली हम स्लाइड्स के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए यूज करते हैं, पर इसको भी हम एनिमेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसका भी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। और ये बेसिकली आयुर्वेद के स्टूडेंट्स या कोई भी नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी कर सकता है। हमें इन सॉफ्टवेयर्स को दूसरे एंगल से सोचकर, अपने क्रिएटिविटी को जोड़कर किस तरह से यूज करना है वो आना चाहिए। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे आयोटून्स के बारे में, व्हाट इज आयोटून्स, और इनके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन इज द वे ऑफ मेकिंग अ मूवी फ्रॉम मेनी स्टिल इमेजेस। द इमेजेस आर पुट टुगेदर वन आफ्टर द अनदर एंड आर प्लेड एट अ फास्ट स्पीड टू गिव इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। हमने पिंजरे में कैद तोते का एग्जांपल देखा है। एक कार्ड के एक साइड पे पिंजरा बना होता है, कार्ड के दूसरे साइड में तोता बना होता है। हम कार्ड को घुमाते हैं और हमें इल्यूजन होता है कि वो तोता जो है वो पिंजरे के अंदर है। वही थियरी एनिमेशन की है। एक मूवमेंट, एक हाथ का मूवमेंट दिखाने के लिए हमें कई सारे इमेजेस ड्रॉ करेंगे। अगर 2D एनिमेशन की बात करें, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, दो तीन तरह की एनिमेशन होती है। जो बेसिक एनिमेशन है वो 2D एनिमेशन है, जैसे वो टॉम एंड जेरी आता था टीवी पे। टॉम एंड जेरी एक काइंड ऑफ 2D एनिमेशन। अभी जो आते हैं वो मैक्सिमम 3D एनिमेशन आते हैं। तो 2D एनिमेशन में जो बेसिक्स यूज होते थे वो कई सारे पिक्चर्स, कई सारे ड्राइंग्स, एक एक सेकंड्स पे लिए गए इमेजेस, और उनको कंबाइन करके उनको रोटेट करना, उनको रिपीट करना, जिससे कि वो लगे कि मूवमेंट हो रहा है। एक तरह का इल्यूजन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं।
इसी इल्यूजन को हमने एनिमेशन आयुर्वेद में यूज करना है। तो स्कोप ऑफ एनिमेशन इन आयुर्वेद क्या क्या है? मेकिंग द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। ये बात भी कुछ इंटरेस्टिंग ही है। क्यों? हम किसी मूवी को देखते हैं और वो मूवी एक ही बार देखते हैं और वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है। हम किसी श्लोक को पढ़ते हैं, उसे 100 बार पढ़ते हैं, बट फिर भी याद नहीं रहता, एग्जाम में भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो मैक्स टू मैक्स 2 सेंसेस हमारे यूज होते हैं। एक तो हम श्लोक को देखते हैं और जो बोलते हैं वो सुनते भी हैं। तो देखना और सुनना, सिर्फ इन्हीं 2 सेंस को यूज करके हम उस श्लोक को पढ़ते हैं। बट जब हम मूवी देखते हैं तो नियरली हम हमने हमारे 5 सेंसेस को यूज करते हैं। वहां अगर मूवी में कुछ खाना बन रहा होगा तो उसकी स्मेल भी हमें आती है, उसकी टेस्ट भी हमें महसूस होती है। हम मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं, इस वजह से वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है। पिक्चर फॉर्म में जब किसी चीज को हम देखते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहती है। इस वजह से आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स को, उसके उसके सिद्धांतों को अगर हम इंटरेस्टिंग करते हैं तो वो समझने में आसान हो जाएंगे और रिटेन करने में भी आसान होंगे। इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, चलो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टेकिंग आयुर्वेदा टू कॉमन मैन। आयुर्वेद के कंसेप्ट, बहुत गलत कंसेप्ट लोगों में है, जो कॉमन मैन में है, हमें उनको सही करना है। बट अगर हम उनको श्लोक सुनाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे। हमको उनको उनके वे में आयुर्वेद को समझाना है। यही मेन मोटो था आयुर्टून्स के पीछे, कि लोगों को आयुर्वेद उनके लैंग्वेज में सिखाना। ये मेन मोटो था मेरा। और लास्ट, इजी टू रिकॉल सब्जेक्ट। सिंपल है, जब तक हम सभी सेंसेस यूज करके चीजों को नहीं देखते, नहीं समझते हैं, तब तक हमें वो ज्यादा देर तक रिटेन नहीं हो पाते हैं। तो कौन से एनिमेशन एप्लीकेशंस अवेलेबल है? ये दोनों प्लेटफॉर्म के लिए, विंडोज प्लेटफॉर्म, आईओएस प्लेटफॉर्म और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, तीनों प्लेटफॉर्म पे यूज होने वाले ये है। मैक पे भी, मैक और विंडोज डेस्कटॉप या लैपटॉप्स के लिए, और आईओएस और एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल के लिए। तो इन सब पे काम करते हैं। पहला है, वैसे तो कई सारे ऐप्स है, उनमें से कुछ छांट कर मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जो अच्छे हैं। पहला है टूनटास्टिक। टूनटास्टिक इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन ऐप डेवलप्ड बाय गूगल फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस यूजर्स। मींस ये स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए बना हुआ है और गूगल का है, तो इसके फीचर्स भी अच्छे होंगे। टूनटास्टिक, इनको आप सर्च कर सकते हैं जब ये प्रेजेंटेशन हो जाए। पिक्सआर्ट एनिमेशन। पिक्सआर्ट जनरली हम पिक्चर्स या फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, बट इनका एक एनिमेशन का भी एप्लीकेशन आता है। ये सिर्फ सीमित है जीआईएफ बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए सीमित है, तो इसको भी आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं एनिमेशंस के लिए भी। नेक्स्ट आता है फ्लिपा क्लिप। ये कार्टून एनिमेशन ऐप है, ये स्पेसिफिकली कार्टून्स के लिए बना है। ना तो ये वीडियो एडिटिंग है और ना ही फोटो एडिटिंग ऐप है, ये वीडियो कार्टून्स के लिए ही है। नेक्स्ट है काइन मास्टर। काइन मास्टर कई लोग यूज कर रहे हैं आजकल। जितने लॉकडाउन में जितने नए यूट्यूब चैनल्स खुले हैं, सभी काइन मास्टर के बदौलत खुले हैं। एक फ्रीली अवेलेबल ऐप है, इसके फ्री फीचर्स भी इतने एडवांस है कि आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जनरली वीडियो मेकिंग ऐप है, बट इसमें आप एनिमेशंस भी बना सकते हैं अगर आप इसको स्मार्टली यूज करते हैं, इसके एक एक फीचर्स को। स्टिक नोट्स। स्टिक नोट्स एक तरह का एनिमेशन ऐप है जिसमें स्टिकी एनिमेशंस होते हैं। व्हाट इज स्टिकी एनिमेशन? स्टिक से बने हुए, जैसे माचिस की तीली से बने हुए इंसान जो दिखाई देते हैं, उस तरह से आप उनको एनिमेट कर सकते हैं। मीन्स एक माचिस की तीली का ढांचा होगा जो आदमी की तरह दिखेगा, और उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स ये भी फ्री है और इजी टू यूज है। स्टिक फिगर्स के एनिमेशन आप इसमें बना सकते हैं। और लास्ट, एमएस पावर पॉइंट। इस पे शायद कई लोग मुझ पे हंस रहे होंगे कि एमएस पावर पॉइंट एनिमेशंस में आप कहाँ ले आए। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इसी प्रेजेंटेशन के बाद होगा, शायद इसी स्लाइड के बाद है। एमएस पावर पॉइंट जनरली हम किसी सेमिनार या जैसे अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशंस देने के लिए, मीटिंग्स में प्रेजेंटेशंस देने के लिए यूज करते हैं। उसमें एक फीचर है कस्टम एनिमेशन या स्लाइड शो का, जो उसको आप बिगिनर्स के तौर पे, एनिमेशन को समझने के लिए बिगिनर्स के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, उससे आप कई आयुर्वेद के सिद्धांतों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई हमारे, जैसे मैं संहिता सिद्धांत से हूँ, तो मेरी डीलिंग जनरली सिद्धांतों में होती है। तो उन सिद्धांतों को फर्स्ट ईयर के बच्चों को, लोग कंप्यूटर सीख के आए हैं, उनको अगर आप
आयुर्वेद के पद्धति से इस जमाने में अगर सिखाने की कोशिश करेंगे तो कम लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि कम ही लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप उसको नेगेटिव एंगल से पढ़ाते हैं तो ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। क्लास में अगर आपके 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप नियरली 90 to 95 स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं इन सब चीजों को यूज करके। जनरली MS पॉइंट की जो होती है वो बहुत बोरिंग होती है, इस वजह से शायद आपने मेरी स्लाइड देखी, बहुत कलरफुल और ड्राइंग्स और सब चीजें मैंने ऐड की है ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो देखते हैं, यूजिंग पावर पॉइंट एज बिगिनर्स टूल फॉर एनिमेशन। तो 5 स्टेप में आप इसको यूज कर सकते हैं। पहला स्टेप, आप कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड इमेजेस, सपोज आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, आयुर्वेद का नहीं, रैबिट और टॉर्टॉइस की जो आपने स्टोरी सुनी है, कछुआ और खरगोश की जो कहानी सुनी है, उससे रिलेटेड इमेजेस अगर आप उसको एनिमेशन पावर पॉइंट में बनाना चाह रहे हैं, सिंपल एनिमेशन, तो उनके इमेजेस आप कलेक्ट कर लीजिए। क्रिएट ए स्टोरी, पहले एक स्टोरी जॉट डाउन कर लीजिए किसी पेज पे, हमने स्टोरी क्या बनानी है। यूज कस्टम एनिमेशन फीचर स्मार्टली, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन का जो फीचर है, जनरली स्लाइड शो वाले टैब में आपको मिलेंगी इसकी रिबन जो कस्टम एनिमेशन की है। उसमें एक आता है यूज मोशन पाथ्स फॉर मूवमेंट, मोशन पाथ करके एक फीचर आता है। अगर आप एनिमेशन कस्टम एनिमेशन में जाएंगे, वहां पे एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस, ये 3 चीजें तो होती है, एक चौथा चीज और होता है, वो है मोशन पाथ। और इस मोशन पाथ को, कस्टम मोशन पाथ, उसमें एक और ऑप्शन होता है, उसको आप यूज करके कस्टम पाथ्स बना के इमेजेस को मोशन दे सकते हैं। उसके लिए हो सकता है आपको इमेजेस का कुछ पार्ट कट करना पड़े, जैसे मुझे हाथ की मूवमेंट करनी है, तो वो उस हाथ के पिक्चर को मैं अलग से कट करूंगा। उस कटिंग के लिए आप अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे फोटो कटर्स होते हैं या फोटो एडिटिंग एप्स जो होते हैं, उसमें कटिंग का ऑप्शन आपको मिल सकता है, उससे आप कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा इस स्लाइड के बाद। एंड योर फर्स्ट एनिमेशन इज रेडी। अगर आपने ये सब चीजें कर लिया तो आपकी पहली एनिमेशन रेडी हो जाएगी। जो मेरी पहली एनिमेशन थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, यही टॉर्टोइज और रैबिट वाली स्टोरी थी। लेट्स सी एन एग्जांपल, स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टोइज। तो ये हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं, रैबिट एंड टॉर्टोइज। रैबिट कहता है, हे टॉर्टोइज लेट्स रेस। टॉर्टोइज कहता है, यस व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। ये पावर पॉइंट दिखा रहा हूं मैं आपको, पावर पॉइंट में ही सारी चीजें बनी हैं। इसके बाद हम आईट्यून्स पे डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा एडवांस लेवल में जाएगा। अब इनकी रेस स्टार्ट हो रही है और ये रेस लाइन पे खड़े हैं। गेट सेट एंड गो। तो खरगोश फास्ट चले गया और टॉर्टोइज धीरे धीरे जा रहा है। खरगोश पीछे मुड़ के देखता है, कछुआ बहुत पीछे दिखता है। ओ, ही इज टू फार, लेट मी स्लीप फॉर सम टाइम। वो सो जाता है और घुराने की आवाज भी आ रही है। और कछुआ इस मौके का फायदा उठा के रेस जीत जाता है। तो इस तरह से छोटा सा कंसेप्ट लेकर आप पावर पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक एग्जांपल दिया, इसको और डिटेल और अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। केवल एक ही फीचर इसमें यूज किया, वो है मोशन पाथ। आप कई सारे फीचर्स, कई सारे एनिमेशन फीचर्स है इसके अंदर, उनको यूज कर सकते हैं कई सारे आयुर्वेद के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बात करते हैं आयुर्टून्स, जो हमारा मेन मुद्दा है इस एनिमेशन इन आयुर्वेदा पे। आयुर्टून्स ज्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पहले मैंने आयुर्टून्स की आइडिया दिमाग में आई और आयुर्टून्स बनाया। उसका यूट्यूब चैनल जो मेरा प्रबोध एरावार नाम से है, उस पर इसको अपलोड किया। इसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला, कई लोगों के फोन आए कि आपने एक इनोवेशन आयुर्वेद में ऐड किया है, तो मुझे खुशी हुई, जिस कारण से इसका सीजन 2 भी मैं ले आया। पहला सीजन जो था वो प्रकृति के ऊपर था, प्रकृति के कंसेप्ट्स को एनिमेशंस के द्वारा समझाया गया। उसके हमने 4 वीडियोस बनाए हैं, वात प्रकृति का अलग, पित्त प्रकृति का अलग, कफ प्रकृति का अलग, और एक कंबाइंड अनुकत्व बताने के लिए तीनों प्रकृतियों का, यानी किस जानवर से वो मैच करते हैं, उसकी एक स्टोरी बताई। और सेकंड सीजन जो है वो चरक संहिता पर आधारित आहार वर्ग के ऊपर था, जिसपे हमने क्षीर वर्ग, सॉरी गोरस वर्ग, फल वर्ग,
हरित वर्ग, शिंबी धान्य वर्ग, इनको एक्सप्लेन किया है। तो ये यूनिक वे है आयुर्वेद के कंसेप्ट को बताने का, आयुर्टून्स। तो प्रकृति के ऊपर जो 4 वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, इसको हम एक या 2 वीडियो हम इसके देखेंगे। पहला है डिनर डेट। हाँ, ये नाम क्यों अटपटे से लग रहे हैं? डिनर डेट विथ वात प्रकृति, रिवेंज ऑफ पित्त प्रकृति, फेसिंग कफ प्रकृति फादर, एंड प्रकृति द कंक्लूजन। तो ये किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह इसके एपिसोड्स के नाम है, जैसे हम नेटफ्लिक्स और उस पर देखते हैं। तो इसमें स्टोरी भी है। एक्चुअली क्रिएटिविटी डालना बहुत जरूरी है आपके कंसेप्ट में। तो इसकी स्टोरी मैं आपको पहले सुना देता हूँ कि स्टोरी बेसिक आइडिया क्या था, और दोनों सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है। आहार वर्ग भी और प्रकृति भी, उनकी स्टोरी कॉमन चलती है। ये स्टोरी 2 कैरेक्टर्स की है। एक का नाम डॉक्टर प्रबोध है, जो मैं हूँ, और एक का नाम है अंकिता, जो मेरी वाइफ है। ओके, इन दोनों की स्टोरी प्रकृति के ऊपर है। शुरुआत होती है शादी से पहले से, कि किस तरह से मैंने अंकिता को अप्रोच किया, किस तरह उसकी प्रकृति असेसमेंट की, क्या उसमें कंसेप्ट थे। डिसगाइज था, एक तरह से डिसगाइज था कि मैंने, उसे नहीं पता था कि मैं डॉक्टर हूँ, और फिर भी मैं उसकी प्रकृति असेस कर रहा हूँ। और फिर उसके पापा को कैसे पटाना पड़ा, वो पापा कफ प्रकृति के थे, इसलिए लिखा है फेसिंग कफ प्रकृति फादर। ठीक है, किस तरह से उनको फेस किया, और लास्ट में किस तरह से हम मिले। और सेकंड सीजन जो दाल दाल वाला सीजन, जो आहार वर्ग वाला सीजन है, उसमें दिखाया गया है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी थी। मैरिड लाइफ की स्टोरीज जो है एक्सप्लेन की है। मैं ये सब कहानियां इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको क्रिएटिविटी, आज का दिन जो है वो एनिमेशन है। एनिमेशन इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, और आयुर्वेद में क्रिएटिविटी डालना ये जरूरी है, ताकि आप कंसेप्ट आयुर्वेद के कॉमन मैन तक ले जाए। और मैं सही बताता हूँ, मेरे चैनल पे 2 तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे। एक एजुकेशनल वीडियोस जो पदार्थ विज्ञान स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है, और एक है आयुर्टून्स जो कॉमन लोगों के लिए है। तो जब मैं पदार्थ विज्ञान और उसके वीडियो डालता हूँ तो मुझे स्टूडेंट से रिव्यूज मिलते हैं, और जब आयुर्टून्स डालता हूँ तो मुझे कॉमन, मेरे जो रिलेटिव्स है या जो मेरे कॉमन मैन है, उनसे मुझे रिव्यूज मिलते हैं और अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक वीडियो हम इसमें से देखते हैं। बहुत पहला वीडियो जो आयुर्टून्स का था, मैं सेकंड स्लाइड भी आपको दिखा देता हूँ। आहार वर्ग की, इनके नाम कुछ ऐसे हैं। दाल में कुछ काला है, जो पल्सेस के ऊपर है। शिंबी धान्य वर्ग, दूध का दूध और मट्ठे का मट्ठा, ये गोरस वर्ग पे है। सब्र का फल मीठा होता है, ये फल वर्ग पे है। और ऊंट के मुंह में जीरा, ये हरित वर्ग में है, क्योंकि हरित वर्ग में ऊंट, जीरा, सॉरी ऊंट तो नहीं, जीरा, धनिया, गाजर गाजर, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। ये वीडियोस हिंदी में है। इसका इंग्लिश वर्जन अभी रेडी नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी इन फ्यूचर वो आ सकता है। तो डिनर डेट विद वात प्रकृति देखते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि आपको वो वीडियो समझ में आए। हो सकता है वॉइस ऊपर नीचे हो, क्योंकि ऑनलाइन है। फिजिकली आप इसको देखेंगे, या जब आपको मौका मिले आप इसको जरूर वॉच करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो में इमेजेस आगे चले, और या वॉइस पहले आए और इमेज बाद में आए। तो इसकी स्टोरी ऐसी है। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर रमेश, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है। उसको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है। ठीक है, उसकी एक फ्रेंड अंकिता, अब वो चाहता है, वो उसकी पेशेंट भी है, वो चाहता है कि मैं उसकी प्रकृति असेसमेंट करूं, बट उसे पता ना चले कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। तो मैं कैसे उस लड़की की, कैसे उस अंकिता की प्रकृति एनालाइज करता हूँ, इसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। जो एनालिसिस हुआ है, मैं आपको क्लाइमेक्स पहले ही बता देता हूँ कि एनालिसिस जो हुआ है वो उस लड़की की प्रकृति, वात प्रकृति एनालाइज हुई है। वो किस तरह से एनालाइज की, एक वीडियो के माध्यम से बताया। भले ही ये एनिमेशन है, टून्स है, बट यहाँ शास्त्र को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। चरक संहिता के रेफरेंस के आधार पर पूरे श्लोकों को एक्सप्लेन किया गया है। वही अगर आप रिवेंज ऑफ पित्त प्रकृति वीडियो देखेंगे, इसमें आपको श्लोक के वर्ड्स भी दिखाई देंगे, वात प्रकृति वाले में नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल वीडियो था। तो इसको हम देखते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। वीडियो दिख रहा है?
Yes, yes. मे बी नेटवर्क की वजह से ये स्लो है। मैं किसी और हूँ। क्या लाया? कुछ आया क्या लाया? कुछ आया हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर प्रबोध। आज जो हमारा किस्सा है उसका नाम है डिनर डेट विद वात प्रकृति। एक्चुअली इस किस्से के पीछे की कहानी ये है कि मेरा एक दोस्त है रमेश। वो एक एलोपैथिक डॉक्टर है। उसे भी प्रकृति में इंटरेस्ट है। तो उसकी एक पेशेंट है जो उसकी एक फ्रेंड भी है, जिसकी उसने प्रकृति निकाली थी वात प्रकृति। मीन्स उसमें मैक्सिमम लक्षण जो थे वात प्रकृति के थे। अब वो मुझे ये कह रहा है कि तूने उसे कंफर्म करना है कि वो वात प्रकृति है या नहीं। बट एक शर्त है कि उसे पता ना चले कि तू उसका प्रकृति परीक्षण कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो जनरली किसी एक प्रकृति के लक्षण एक इंसान में नहीं मिलते हैं, मिले जुले लक्षण मिलते हैं। बट मैंने जस्ट ये देखना था कि इसकी प्रकृति में वात की प्रधानता है, यानी कि वात प्रकृति ज्यादा, वात प्रकृति के कैरेक्टर्स इसमें ज्यादा है या नहीं, वो मैंने चेक करना था। तो देखते हैं मैंने क्या किया। अच्छा, तो ये है वर्षा। वैसे वात प्रकृति के कुछ लक्षण तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। तो छोटी भी है हाइट में, पतली भी है, और इधर उधर देख रही है, चंचल भी लग रही है। चलो देखते हैं और क्या लक्षण है। पास जाके कुछ बात करता हूँ, कुछ तो हिम्मत करता हूँ। हेलो, आप वर्षा हो ना? मैं हूँ प्रबोध। ओह हेलो प्रबोध। अच्छा, उसकी आवाज भी रूखी और फटी हुई है। अब इससे खाने से रिलेटेड सवाल कैसे पूछूं? अच्छा, तो खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दे। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो भर पेट खाऊंगा। वैसे मैं तो कम ही खाती हूँ, यू नो डाइट कॉन्शियस। मुझे ना आदत है, मैं बार बार खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बार बार खाती हूँ। चलो एक और लक्षण मिल गया वात का। क्या? कुछ कहा क्या? नहीं, गले में खराश थी। मुझे तो ना ज्यादा खाना खा के ना बड़ा मजा आता है, और उस खाने के बाद जो सोने में मजा आता है, ओ हो। हाँ, ऐसे मेरी किस्मत कहाँ। मुझे तो कभी नींद आती है और कभी नहीं आती। एक और लक्षण। गर्मी हो रही है ना बहुत, वेटर से कह के एसी लगवा दो। नहीं, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। वैसे तुम करती क्या हो? मैंने एमबीए किया है। अच्छा, तो फिर तो टास्क भी बहुत मिलते होंगे। मिलते तो है। मैं काम तो बड़ी कुछ कर देती हूँ, पर खत्म नहीं कर पाती हूँ। वैसे ये तुम्हारी उभरी हुई नसें देख के मुझे मेरे मेडिकल वाले दिन याद आ जाते हैं।
किसी की भी ऐसी उभरी हुई नसें देखते थे, हमें बहुत मजा आता था, क्योंकि ना ऐसे उभरी हुई नसों पे आईवी इंजेक्शन बड़े आसानी से लगा सकते हैं ना। क्या क्या तुम डॉक्टर तुम हो? डॉक्टर हो? ओह, मैंने पहले समझ जाना चाहिए था। तुम्हें उस रमेश ने भेजा है। ये तुमने ये अच्छा तुमने नहीं किया। अच्छा नहीं किया। तो ये ये थी थी मेरी मेरी डेट डेट पे पे चपेट। चपेट, हाँ, डिनर विद तो ये थी डिनर डेट विद वात प्रकृति। तो कई सारे लक्षण इसमें हमने देखा, कई सारे लक्षणों को हमने इसमें देखा जो वात प्रकृति से रिलेटेड थे। तो यही कंसेप्ट को लेकर जो है आयोटून्स डेवलप किया गया। इसकी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो पित्त प्रकृति पे है, कि ये जो डॉक्टर है ये पित्त प्रकृति का दिखाया है और वो किस तरह अपना बदला लेता है। देन कफ प्रकृति के उसके फादर है। तो इसी तरह मिला जुला क्रिएटिवनेस इसके अंदर डाला गया, और इसी तरह से आहार वर्ग को भी प्रेजेंट किया गया है। आहार वर्ग का वीडियो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि क्रिएटिविटी अगर आप कहीं भी डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करके आती है, और आप बहुत अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट लाइन, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। अगर आप जितने पिक्चर्स को यूज करते हैं, जितने वीडियोस को यूज करते हैं, वो कई सारे वर्ड से अच्छे होते हैं। तो इसी के साथ आज का मेरा ये प्रेजेंटेशन यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं आयोजक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। Excellent, Dr. Yadavar. Nicely explain the basic concept of animation. Great. Now I would like to request Dr. Raghavani, Dr. Vaidya Raghavani. I'm sorry. राघवानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, सुनाई दे रही। जी। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स। एक मिनट, मेरे स्लाइड्स शेयर कर दूं। यस, डॉक्टर राघवानी जी इज असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्म, गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज, अहमदाबाद। वेलकम डॉक्टर राघवानी, यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन नाउ। दिख रही है This स्लाइड्स? is also a new subject. Great, excellent. Your slides are visible. विजिबल? हेलो? Yes. ओके। हाँ, सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए, मैं बेसिकली कच्छ से हूँ, और आषाढ़ी बीज मीन्स आषाढ़ी जो दूज रहता है वो कच्छी न्यू ईयर रहता है, और उसका भी महत्व हमारे में बहुत रहता है। तो और वो भी ये टॉपिक के साथ में ही है, सिंप्लिसिटी के साथ में। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इस दिन मुझे ये टॉपिक पे लेक्चर देने के लिए आपने मुझे मौका दिया। First of all, Happy New Year. Happy New Year to you. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ये उसके लिए थैंक यू। और जैसे आज का दिन का है नेशनल सिंप्लिसिटी डे, और उस हिसाब से मैंने आज का हमारा जो है वो ये प्रेजेंटेशन भी रहेगा, वो नाम के ऊपर ही रहेगा। सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और ये नेशनल सिंप्लिसिटी है, मींस सिंप्लिसिटी हमारे लाइफ में, और पर्टिकुलरली जो आयुर्वेद के फील्ड में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके हिसाब से थोड़ा इसमें हम बात करेंगे। तो नेशनल सिंप्लिसिटी डे की हिस्ट्री पहले हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है नेशनल सिंप्लिसिटी डे? नेशनल सिंप्लिसिटी डे है इज वाज फाउंड इन ऑनर ऑफ हेनरी डेविड थोरो।
तो ये एक्चुअली अमेरिकन डे है, जो अमेरिकन के एक ट्रांसजेंडर्स जो बोलते हैं उनके जो एक फिलोसोफर्स है, उनके एक ऑथर है, उनकी याद में ये डे मनाया जाता है, जिनका जन्म 12 जुलाई 1870 में हुआ था। उनकी याद में बनाया जाता है। वो एडवोकेट करते थे सिंपली लिविंग सिंपली, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी नंबर ऑफ द बुक्स उन्होंने लिखी हुई है, जो काफी फेमस है और काफी लोगों के जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। और वो सिर्फ ऑथर नहीं थे, वो एनवायरमेंटलिस्ट थे, एबोलिशनिस्ट थे, पोएट थे, बहुत सारी चीजें थे वो करते थे। लेकिन वो उनके जीवन का एक मूल सिद्धांत था, वो था सिंपलिसिटी, लिविंग लाइफ विद सिंपलिसिटी। इसलिए उनकी याद में नेशनल सिंपलिसिटी डे वो मनाते हैं मूलतः अमेरिकन, और हम भी एडॉप्ट कर लिए। लेकिन हम आगे बात करेंगे कि ये उन्होंने सिंपलिसिटी डे मनाया है, लेकिन अब वो सभी चीजें हमारे कल्चर में, हमारे जो महानुभव है उसमें सभी में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती ही है। ये उसकी टाइमलाइन आप देखते हैं तो 12 जुलाई 1870 हेनरी डेविड थोरो का बोर्न हुआ इन कॉन्कॉर्ड मास में। फिर जुलाई 4 1845 में उन्होंने क्या किया कि वो एक पौंड के बाद, वेल्डन पौंड के बाद 2 साल 2 महीने 2 दिन के लिए वो खुद नेचर के गोद में चले गए। वो खुद वहां पे चले गए, और फिर वहां नेचर की गोद में जाने के बाद उनको पता चला कि लाइफ क्या है, उनके थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में सब चेंजेस आने लगे। और फिर उन्होंने अगस्त 1854 में वेल्डन और लाइफ इन अ वुड्स करके एक बुक पब्लिश की, जो बहुत ही उन लोगों में फेमस थी। और उसके बाद में उनको ये नेशनल सिंपलिसिटी डे मनाने में पब्लिक में हुआ आए। और मई 6 1862 में वो थोरो डाइस इन कॉन्कॉर्ड मास में, वो उनका देहांत तब हो गया। ये जब हम बात करते हैं कि वो प्रकृति की गोद में गए, 2 साल 2 महीने रहे, तब हमें एक आयुर्वेद का भी सिद्धांत याद आता है कि हमारे में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में, हमारे कल्चर में भी बताई हुई है। सबसे पहले उनको प्रकृति के पास में गए, फिर उसके बाद उनको पता चला कि ये सब क्या चीज है। प्रकृति मीन्स भगवान, या जो कोई भी फोर्स है प्रकृति, वो उनको पता चला। तो हमारे कल्चर में भी बता हुआ है कि चेतन तत्व है वो सभी सभी तत्वों में रहते हैं, सभी तत्वों में चेतनत्व है ही। और चरक में भी बताया हुआ है। आप चरक संहिता में सूत्र स्थान 1 में बताया हुआ है कि चेतनत्व किसको बोलते, चेतन द्रव्य किसको बोलते हैं, कि जो इंद्रिय सइंद्रिय चेतन द्रव्य निरिंद्रिय चेतन। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ में चेतनत्व नहीं है, लेकिन कोई भी पदार्थ वो इंद्रिय नहीं है, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम उसको स्थूल मीन्स हम अपनी जो व्यवहारिक भाषा में उसको अचेतन बोलते हैं। तो ये प्रकृति के पास चेतन था, उसके पास वो थोरों को मिला, और फिर उन्होंने आगे कन्वे किया। तो ये बताते हैं, ये इनका फेमस कोट है कि मैं क्यों प्रकृति के पास गया। आई वेंट इनटू वुड्स बिकॉज़ आई विश टू लिव deliberately, to front only the essential facts of the life and the sea. If I could not learn without it had to teach, and not when I came to die discovered that I had not lived. ये बताते हैं कि मैं क्यों गया, और उसके जाने के बाद उन्हें क्या पता चला। तो ये बात करते तब मुझे हमारे इंडियन फिलोसोफर पांडुरंग शास्त्री जी, उनकी एक बात याद आती है कि जब हम प्रकृति के पास जाते हैं, जैसे हम समुद्र के पास जाते हैं, पहाड़ों के पास जाते हैं, घने खेत में जाते हैं, तो हमें वो प्रकृति का जो फोर्स है उसका चेतनत्व का एहसास होता है। लेकिन पहले जैसे मैंने बात की ना कि चेतनत्व तो सभी में, हमारे में भी है, लेकिन हम एक आदमी दूसरा आदमी को मिलता है तो वो फोर्स, वो चेतनत्व हम फील नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम प्रकृति के पास जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, तो हम फील कर पा रहे हैं। तो उसका कारण वो ये बताते हैं कि प्रकृति ने अपना चेतनत्व है वो संभाल के रखा है, वो इंटैक्ट है, वो किसी भी दूषित नहीं हुआ है। जैसे, और हमने क्या किया है, हमारे में जो चेतनत्व है वो हमने क्या किया, वो उसको हम हमारे जो कोई भी काम है, मद है, मत्सर है, वो सब गुणों के साथ आवरण करके वो कर दिया है, आवरण कर दिया है। तो उस हिसाब से एक आदमी दूसरे आदमी को मिलता है तो उसमें चेतनत्व वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। बल्कि उल्टा तो कभी अभी अभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो काउंसलिंग करने जाता है, खुद उसको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, ऐसा भी होने लगा है। तो ये हमें सोचना चाहिए। तो और आज के दिन में हमें मीन्स आज के एरा में हमें सिंपलिसिटी मीन्स ये
बात प्रकृति के बारे में सोचने, प्रकृति के पास में जाने की सोचना क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आज के इरा में ही है। क्यों? क्योंकि व्हाई नीड सिंप्लिसिटी, क्यों चाहिए हमें? क्योंकि आज का जो वर्ल्ड हमें सबको मालूम है कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है। सभी जगह पे हम मीन्स इमोशनली है, सभी जगह पे हम टूटे हुए रखते हैं, कहीं पे निराशा आती है, कॉम्पिटिटिव रहता है, स्ट्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है। तो वो सब में हम अपने अपने आप को खुद को भूल जाते हैं। वी आर रेयरली एक्सपीरियंस द ट्रू पीस एंड क्वाइट टुगेदर इन आवर थॉट्स। हम अपने आप को खुद को देख ही नहीं पाते इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में। इसीलिए हमें सिंपलिसिटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो सिंपलिसिटी पाने के लिए नेचर की गोद में बाय जरूरत पड़ती है। कैसे कर सकते हैं कि सिंपलिसिटी क्यों? फॉर द हीलिंग हील बाय द टेकिंग अ स्ट्रोल इनटू द मदर्स नेचर लेवल। मदर नेचर के पास में जाके हमें वो आराम का मीन्स वो सिंपल हमें खुद को पहचानने की जरूरत इसी टाइम में जरूर पड़ती है। और उसी हिसाब से हम नेचर और हमारे के बीच में ट्यून कर सकते हैं और फोकस रिफोकस कर सकते हैं। और हमारी जिंदगी में जो सभी तरह का बैलेंस है, स्थिरता है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चरक बोलता है कि व्यायाम स्थिर करणाम है, हम व्यायाम स्थिर कर सकते हैं। वैसे भी हम ये प्रकृति के पास में जाएंगे तो हम थॉट्स में भी हम जैसे वो शरीर की स्थिरता कर लाता है, वैसे हमारे थॉट्स की धारणीय मीन्स जो सब हमारे अधारणीय वेग है, धारणीय वेग है, धारणीय वेग में जैसे ऐसे ही है जो वो हमें धारण करने रहते हैं, वो उसमें बैलेंस लाना हो तो वो प्रकृति के पास में भी हम जाके ला सकते हैं। इसलिए आज के दिन में वो सिंपलिसिटी की आज के इरा में बहुत ही जरूरत है। बहुत सारे ये आप फैक्ट्स मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली अमेरिकन में उन लोगों ने सर्वे किया था कि सिंपलिसिटी और का एक दूसरा पहलू वो मानते हैं कि मिनिमलाइजेशन, कि कम से कम चीजें जितनी जरूरत हो हमारी जिंदगी में और हमें हमारा निर्वाह करने में उतना ही हमें यूज करना चाहिए। जो जरूरत नहीं है वो वैसे भी उसका भी हम संग्रह करते हैं। जैसे योग हमारे आयुर्वेद में और शास्त्र में हमें बोलते योग है, वो परिग्रह त्याग निष्परिग्रह बोलते हैं। योग से चित्तवृत्ति निरोध कब होता है? जब हम परिग्रह का त्याग करते हैं। लेकिन ये फैक्ट्स कुछ दे रहे हैं कि आज के एरा में त्याग परिग्रह तो दूर है, वो हम संग्रह बहुत सारा करते हैं। ये देखिए आप कि 3,00,000 नंबर ऑफ द आइटम्स द एवरेज अमेरिकन होम्स, इतना अमेरिकन होम्स में इतनी एवरेज आइटम्स रहती है। 1 in 10 नंबर ऑफ द अमेरिकन हु रेंट आउटसाइड द स्टोरेज, इतना सामान रहता है कि वो स्टोरेज उसको कम पड़ता है। 25% of people with 2 car garage who don't have a room to park car inside them, इनके पास इतना गैराज होने के बावजूद भी वो कार पार्किंग की जगह नहीं मिलती। 238 नंबर ऑफ द टॉयज एवरेज 10 years old owns, 238 खिलौने उनके पास होते हैं, लेकिन वो उनमें से 12 द नंबर ऑफ द टॉयज इन एवरेज 10 years of play with, उसमें से वो हार्डली 10-12 है उससे वो खेलता है। 30 the number of the outfits average American woman owns, 1,700 amount of the the money average American family spends on the cloth annually। और उसका वेट देखिए 65 pounds the weight of the clothing that average American throws away in the year। और ये सबसे ज्यादा about 1.2 trillion dollar money spent by the American annually on non-essential goods। ये सिर्फ उन लोगों का सर्वे है। हम देखेंगे तो हमें भी इतनी बहुत सारी चीजें हम खुद हमें देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ पे इस पे। तो ये नंबर के फैक्ट्स ऊपर पता चलना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो ट्रेडिशन क्या है? वो लोग ट्रेडिशन क्या करते हैं कि नेशनल सिंपलिसिटी डे को वो लोग कैसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले वो पर्ज देयर बिलोंगिंग्स, उनको पर्ज करते हैं, शुद्ध करते हैं और उनको डिस्कार्ड करते हैं। जो जरूर डिस्कार्ड देयर थिंग्स नो लॉन्गर नीड्स और क्लॉथ दैट नो लॉन्गर फिट्स, जो जरूरत नहीं है वो लोग जो जरूरत नहीं है वो चीजों को वो दूर करते हैं। फिर क्या दूसरी चीज क्या करते हैं? टेक अ स्टेप बैक एंड कंपार्टमेंटलाइज दैट दे नीड एंड दे डोंट नीड। उनको वो सेक्शन में मींस हम एक तरह से देखें तो हमारे में जो बोला है ना कि सिंहावलोकन, अपनी खुद का, अपनी जात का, अपने आप का वो अवलोकन करना, सिंहावलोकन करना कि सच में मैं कहाँ पे हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास जो चीजें हैं वो मुझे कितनी चाहिए, कितनी है, वो हमें देखना, वो ही वो लोग करते हैं।
और हमें भी करना चाहिए कि नेशनल सिंप्लिसिटी डे के ऊपर फिर हमें सोचना चाहिए कि सच में ये नेशनल सिंप्लिसिटी डे है तो उसकी जरूरत हमें किस लेवल पे चाहिए। हमें 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 खुद से दो ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए कि डेवलपमेंट चाहिए। अगर ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मीन्स मेरे पास 3 गाड़ियां हो, मेरे पास 4 बंगले हो, मेरे इतनी प्रैक्टिस हो, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो वो ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या है? अगर डेवलपमेंट वो इनर डेवलपमेंट है, इनर पीस है। अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको सिंप्लिसिटी आपकी लाइफ में होनी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको डेवलपमेंट चाहिए। तो आप आपके जीवन में सिंप्लिसिटी होना कंपलसरी है। और आप अगर हिस्ट्री देखें, अगर सभी पर्सनालिटीज देखें, जो कोई भी पर्सनालिटीज है, हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारी है और इन जनरल भी बहुत सारी पर्सनालिटी है, वो उन लोगों का डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है वो उन लोगों ने हुआ तो उनके जीवन में सिंप्लिसिटी थी, तो वो अपने जीवन में कुछ डेवलपमेंट कर पाए। ग्रोथ अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है। तो एक दो पर्सनालिटी है वो इन कॉमन सभी को पता है, और सभी को मैं जो बात शेयर करने वाला हूँ वो सभी को मालूम भी होगा शायद, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि अभ्यास होना चाहिए, वो बात बार बार हमारे दिमाग में आनी चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि वो सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तभी हमें जीवन में वो हम उतार पाएंगे। जो दो पर्सनालिटी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये सभी को मालूम है, ये पर्सनालिटी हमें सभी को मालूम है। और अगर हमें नेशनल सिंप्लिसिटी डे में किसी का भी पर्सनालिटी का हमें एग्जांपल देना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आएगा। एक आर्टिकल है द हिंदू में, ये पढ़ने जैसा था। उसका टाइटल ये था कि सिंप्लिसिटी वाज हिज हॉलमार्क। डॉक्टर हमें फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि वो सिंप्लिसिटी उनकी पहचान ही सिंप्लिसिटी के तौर पे थी कि उनके जो क्लोज एड थे और उनके सीनियर साइंटिस्ट थे वी पॉन्डरज जो अब्दुल कलाम जी के, वो इंटरव्यू में बताते थे कि सिंप्लिसिटी वाज ए इनबोर्न क्वालिटी व्हिच ही हैज प्रैक्टिस्ड टिल द इट लास्ट। जब वो प्रेसिडेंट थे तब प्रेसिडेंट के जो पूरा राष्ट्रपति भवन था उसमें वो अपने जो म्यूजिक सुनने की उनके शौक था, तो वो म्यूजिक सुनने में वो आउटडेटेड 2-in-1 टेप रिकॉर्डर वो यूज करते थे। वो चाहते तो उनके पास हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के भी सब इंस्ट्रूमेंट ला सकते थे, लेकिन उनके पास जो अपना खुद का था आउटडेटेड 2-in-1 टेप रिकॉर्डर, उससे ही वो म्यूजिक सुनते थे। और एक बार क्या हुआ कि वो खराब हो गया, मीन्स उसमें जो कैसेट थी वो कैसेट में उसमें बिगड़ गई। तो वो नया टेप रिकॉर्डर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने करोल बाग पे जाके भिजवा के वो टेप रिकॉर्डर रिपेयर कराया। ये उनकी जिंदगी की सिंप्लिसिटी थी। बहुत सारे से उनके जीवन के एग्जाम्पल्स है जो सिंप्लिसिटी है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि उनकी फैमिली को भी वो फैमिली भी सिंप्लिसिटी के राह पे थी। जब वो उनको मिलने आते हैं और वो मिलते हैं 3 दिन राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, घूमते हैं, और फिर वो वापस जाते हैं तब अब्दुल कलाम जी उनके सेक्रेटरीट को पूछते हैं कि ये सब रहे उनके घूमे उसका बिल कितना हुआ। वो सब हैरान हो गए कि राष्ट्रपति भवन खुद राष्ट्रपति उसका बिल पे कर रहे हैं अपनी सैलरी में से। तो ये उनकी सिंप्लिसिटी थी। द प्रेसिडेंट और यही वी पनरोज बोलते हैं कि प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू मेनी प्रिविलेज बट ही हैज हार्डली एंजॉयड इट। और हमें सबको मालूम है जब उनका देहांत हुआ तब उनके पास जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, सिर्फ 2 सूटकेस थे, उसमें 6 ट्राउजर्स थे और 3 सूट्स थे। उसमें से वो 2 सूट्स तो वो उनके जो डीआरडीओ का जो गणवेश रहता है वो ही था। तो ये इनकी सिंप्लिसिटी थी, तभी वो इतना अपने आप में डेवलप हो पाए। फिर एक दूसरा उदाहरण हम सबको मैं करना चाहूंगा कि गांधी जी, उनकी लाइफ वो पूरी सिंप्लिसिटी पे थी। और गांधी जी की सिंप्लिसिटी की बात आज ही करनी चाहिए कि जो गांधी जी की जो सेक्रेटरी थे प्यारेलाल, उन्होंने 1947 में एक गांधी जी की अच्छी बात मीन्स बात में आई थी। वो गांधी जी क्या बता रहे थे कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ एवरी मेंस नीड बट नॉट एवरी मेंस ग्रीड। हमारे पास बहुत सारा है जो हमारी नीड को पूरा कर सके, लेकिन हमारा जो लोभ है, हमारा जो ग्रीड है, उसको पूरा करने के वो ताकत अर्थ में नहीं। वो बाकी अर्थ इतना प्रोवाइड करते हैं जो हम सबकी नीड पूरी कर सके। और हमें सबको मालूम है कि गांधी जी
अपनी जिंदगी में ये सिंपलिसिटी है, पूरी जिंदगी मरते दम तक उन्होंने अपनी जिंदगी में रखा। और उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं दी नीड और ग्रीड में। वो हमें वो बोलते कि आपको खुद ईच एंड एवरी पर्सन, ईच ऑफ अस हैज फाइंड देमसेल्फ व्हाट इज द डेफिनेशन मीनिंग ऑफ नीड एंड ग्रीड। हमें अब खुद को तय करना चाहिए कि क्या मुझे चाहिए और क्या मेरा लोभ है, और वो अपनी जिंदगी से ही वो सब मैसेज देते थे। हमें मालूम है कि गांधी जी है वो सिंपलिसिटी अपने वो उनके ड्रेस में से ही पता चल जाता था। क्यों? वो एक तो सिंपल ड्रेस था, दूसरा कि वो ड्रेस खुद अपने आप से बना देते। फिर वो दूसरा रास्ता था कि वो ही इज कमिटेड टू द फ्यू प्रिंसिपल्स सच एज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसे उस वजह से उनकी सिंपलिसिटी में पता चलती है। इज कंट्रोल फूड हैबिट्स, वो उनकी फूड हैबिट्स वो सिंपल खाना ही खाते थे। वो मैं अगर आप में से किसी ने सत्य ना प्रयोग जो गांधी जी की जो बुक है वो पढ़ी हुई होगी तो पता चलेगा कि वो खाने के साथ में वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे, उपवास का कैसे काम करते थे, वो कंट्रोल्ड फूड हैबिट्स रखते थे। फिर उनका आप आश्रम देख लीजिए, उनका जो रहने का क्वार्टर्स देखिए, वो स्पार्टन, वो सिंपल, वो उसके हिसाब से पता चलता है कि वो गांधी जी अपने जिंदगी में कितने सिंपल वो मैसेज देते थे। ये बात हुई ये सब पर्सनालिटी की, लेकिन अब अभी एज अ आयुर्वेद फिजिशियन, एज अ पर्सन, अगर मुझे मेरी जिंदगी में ये सिंपलिसिटी लानी है और उसको मुझे कन्वे करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बात हमें समझनी चाहिए कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ मुझे अपनी जिंदगी में सिंपलिसिटी करने लाने के लिए क्या क्या बातें करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। सबसे सबसे पहले तो हमें लेना चाहिए विटामिन एन। बहुत सारे विटामिन हम एज अ डॉक्टर के तौर पे हम सोचते हैं, देखते हैं, पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये भी विटामिन हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ये एक अभी ही रिसेंटली एक डॉक्टर निमित ओझा करके एक कॉलमनिस्ट है, वो लोग उनका आर्टिकल अभी आया था, वो बहुत ही अच्छा था। वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि माइकल एस्टर है, वो अपनी एक बुक है कंफर्ट क्राइसिस, उसमें लिखते हैं कि जो मनुष्य है वो बाय नेचुरल है, वो डिस्कम्फर्ट के डिस्कम्फर्ट उसके लिए नेचुरल ही है। अगर हमारे पास कंफर्ट है, सभी चीज अवेलेबल है, तो हम अपनी जिंदगी में उदासीन हो जाते हैं। हम हमारी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खुद से कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए जब नेचर के पास हम जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत जो डिस्कम्फर्ट रहता है वो हमारा इवोल्यूशनरी डिस्कम्फर्ट बोलते हैं। वो इवोल्यूशनरी डिस्कम्फर्ट हमारी हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, इनर डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, सभी के लिए अच्छा। और ये हम सब एज ए फिजिशियन सबको मालूम ही है कि आज के जो डिजीज है वो कौन सा एरा है डिजीज का, साइकोसोमेटिक डिजीज का एरा है। तो साइकोसोमेटिक दोनों सभी में जुड़े हुए, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सब दूर करना है तो हमें इसका एक रास्ता ये भी है कि वो क्लोज टू द नेचर, वो नेचर में। इसलिए वो अभी जैसे डाइटिशियन है, ऐसे अभी वो बोलते हैं कि फॉरेस्टिशियन भी अभी एक नया आया है। फॉरेस्टिशियन क्या बोलते हैं कि आपको नेचर के पास में 20-5 और 3 का फॉर्मूला वो उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। 20-5-3 वो फॉर्मूला क्या है कि 20-20 मिनट्स पूरे दिन में आप आपके आसपास में जो कुछ भी नेचर है उसको आप एंजॉय कीजिए। जो आप रूटीन आपकी जो लाइफ है उसके आसपास आप 20 मिनट है वो उसको ऑब्जर्व कीजिए, नेचर कीजिए। 5 घंटे हफ्ते में एक 5 घंटे आप क्या कीजिए कि सेमी जो जंगल है, मीन्स थोड़ा बहुत जंगल है, उसमें आप जाइए और देखिए, जो हम काफी सारे आयुर्वेद फिजिशियंस करते भी हैं। और 3 दिन पूरे साल में 3 दिन ऐसा कीजिए जो आप पूरा के पूरा 3 दिन जंगल में आप बिताइए। तो ये वो बोलते हैं, तो उस हिसाब से ये क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नेचर का हमारे मनुष्य के ऊपर जो इफेक्ट रहता है उसके हिसाब से वो हम इनर डेवलपमेंट हमारा होता है और हमारा स्ट्रेस कम होता है, हम खुद डेवलप होते हैं, हम में खुद फोर्स है वो आता है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि हम नेचर के पास जाते हैं और हमारे पास वो फोर्स हम लेते हैं, चेतनत्व का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम खुद चेतनत्व में हमारे में जो चेतनत्व है उसको भी खिलाना चाहिए, उसको भी हमें बाहर निकालना चाहिए। तो तब ये पांडुरंग शास्त्री आठवले जो स्वाध्याय परिवार के आप बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, वो
बात करते हैं कि हम में खुद में जो रहा जो भगवान है, वो जो चेतनत्व है, उसको भी हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, अभी कोई भी प्रॉब्लम आता है, हम क्या करते हैं कि हम गूगल में सर्च कर लेते हैं। कोई भी चीज हमें देखनी रहती है ना, उसका सोल्यूशन हम सबसे पहले गूगल सर्च करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, गीता में सर्च करना चाहिए। इसलिए एक्टिविटीज क्या करनी चाहिए, गीता में सर्च मीन्स हमें गीता को फॉलो करना चाहिए, या अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके सिद्धांत को समझना चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे हमें अपने अंदर रहले चेतन तो देखना है, तो हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो हमारे अंदर वो गीता में बोला कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, कि हम सब, भगवान बोले कि मैं सबके अंदर में रहता हूँ। और तो हमें और भगवान जैसा बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो जैसे भगवान सेल्फलेस वर्क करता है, हमें सबको मालूम, एज ए फिजिशियन हम आपको सबको मालूम है कि ये जो फिजियोलॉजी है, ये बॉडी ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा लगता ही नहीं है कि विदाउट क्रिएटर ये शक्य है। ये इसका कोई क्रिएटर तो होना चाहिए, लेकिन भगवान ने कभी हमारे पास ऐसा मांगा नहीं है कि तुम इतना करोगे तभी मैं तुम्हारा पंप हार्ट पंप करूंगा, वरना मैं आप तुम्हारा हार्ट पंप बंद कर दूंगा। इसलिए वो सेल्फलेस वर्क करता है। तो एज अ फिजिशियन हमें भी सेल्फलेस वर्क करना चाहिए, वो हमें बताते हैं। तो हम एज अ फिजिशियन हम क्या सेल्फलेस वर्क कर सकते हैं, और जो मेरी कुशलता है, बहुत सारी ऐसे हैं कि मुझे आता नहीं है तो मैं वर्क नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो मेरी कुशलता है, मैं मुझे क्या आता है, मुझे एज अ फिजिशियन मुझे कंसल्टिंग करना आता है, ट्रीटमेंट करना आता है, तो मैं ऐसी ट्रीटमेंट ऐसी जगह पे ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट दूं जिस हिसाब से वो, उसके बदले में मुझे कुछ मिले नहीं। वो उन्होंने पतंजलि चिकित्सालय एक प्रयोग दिया कि वो सेल्फलेस, कि मैं ऐसे जगह पे जाऊं जहाँ पे वो लोग मुझे उसके उसको ट्रीटमेंट दे के मुझे कुछ भी फायदा ना हो, लेकिन और साथ में ट्रीटमेंट देने के साथ में एज अ उनको सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं, मेंटली ट्रीटमेंट मीन्स एक विचार की गोली भी साथ में दे। तो ऐसा ऐसी एक्टिविटीज भी हम अपनी जिंदगी में, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप ये कीजिए, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज आप अपनी जिंदगी में सेल्फलेस वर्क करेंगे, तो अपनी हमारे जीवन में जो अंदर रहा हुआ चेतनत्व है वो निखरेगा, तो हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी आएगी, हम एक कदम उनके नजदीक जाएंगे। फिर क्या कर सकते हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी में लेस इज द मोर। मीन्स ऐसा कभी नहीं बोला है कि लिविंग सिंप्लिसिटी डजंट मीन्स लिविंग विदाउट, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमें क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। ये हम ये दो तीन चीजें हैं हमारी रूटीन जिंदगी में करेंगे, तब हम कुछ अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं है एज अ फिजिशियन आप पेशेंट को भी ऐसा कंसल्ट कर सकते हैं कि ये चीजें अपनी जिंदगी में करेंगे, तो वो अपनी जिंदगी में एक नया पाथ हो देख सकेगा। बोला है जिसे हम विषादो रोग वर्धना नाम, जो विषाद होता है वो रोग, कोई भी रोग है उसको वर्धन, अभी अभी के एरा में आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोविड में 90% पेशेंट में कुछ सिम्टम्स में विदाउट मेडिसिन भी कम हो जाते, लेकिन वो एक विषाद रहता है ना, इसका एक हाइप हो गया था कि वो विषाद हो गया, अभी कोविड हो गया, कोविड हो गया, तो वो उस हिसाब से ही वो उसकी डर में ही उसको सिम्टम्स ज्यादा आने लगते हैं। इसलिए ये काउंसलिंग कर सकते हैं पेशेंट को भी, ये भी हम कर सकते हैं कि ये सब जीवन में सिंप्लिसिटी लाने से वही तभी शक्य, बाकी शक्य नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से इन कंक्लूड अगर हमें कहना चाहिए, तो हमारी जिंदगी में अगर हम सिंप्लिसिटी लाते हैं, तो जो रोग के जो निदान, ये निदान स्थान में बता हुए कि जो मूल कारण है, 3 निदान है, प्रज्ञापराध, असात्म इंद्रिय संयज्ञ परिणाम, और आगे जाके जोर निदान की स्पेसिफिक में बोलते हैं कि लोभ, अभिद्रोह और कोप, वो आगे जाके सभी तरह के 8 तरह के निदान की संप्राप्ति में भाग लेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये जो उसकी उत्पत्ति ही वहीं से होती है, लोभ, अभिद्रोह और कोप से, ऐसा बताए। तो अगर जिंदगी में हम सिंपलिसिटी लाते हैं, तो ग्रीडीनेस कम करते हैं, रहते हैं, तो हमारे जिंदगी जो निदान में सबसे पहला चिकित्सा है निदान और परिवर्जन, तो वो परिवर्जन कर सकेंगे तो बहुत सारे ऐसे डिजीज है और उस पर हम कंट्रोल ला सकते हैं, उसके और उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो आज का मेरा संदेश यही, मेरा इन शॉर्ट कहना यही है कि सिंपलिसिटी लाएंगे तो निदान परिवर्जन के एक रास्ते में, चिकित्सा के रास्ते में भी हम आगे जा पाएंगे।
अगेन मैं सभी को थैंक यू कहता हूँ जो ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि इसकी जरूरत सभी को है, लेकिन इसके बारे में हमें कभी सोचते नहीं है। तो और सभी पहलुओं में ऐसा फिजिशियन को, पेशेंट को, सभी को ये पहलू छूता है। इसलिए एक जो थोरो का जो एक वाक्य है वो कह के मैं मेरा जो वक्तव्य आज मैं खत्म कर रहा हूँ कि एज यू सिंप्लीफाई योर लाइफ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स विल बी सिंपलर। हम सब समझ पाएंगे, वो सिंपल हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को सिंपल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Excellent, doctor. Excellent. Beautifully, you have explained the simplicity without any complexity. Excellent. थैंक यू। Excellent. So now I would like to ask the audience for any question, if any, number one. And number two, if questions are not there, then we will definitely request to Dr. BP Sharma ji, Assam, for his concluding remarks. But nicely explained both the aspects, animation, social media marketing, as well as this simplicity. Excellent. Dr. BP Sharma. हाँ, नमस्कार। Respected Pawan Kumar Sharma, eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today, all the eminent speaker has presented their lecture very nicely. Excellent. First of all, I offer my sincere thanks to Dr. J.B. Heber. He said animation is an important subject. Animation means visual expression. Online advertisement for Ayurveda, he has given guidelines how to send different disease and improvement very nicely, and explain how to use website and good website also. So thank you, Dr. J.B. Heber, for your excellent presentation. Next, I would like to offer my sincere thanks to Dr. Prabodh Yaro Yar, to speak on animation for Ayurveda. He nicely explained what is animation, scope of animation in Ayurveda, and how to make the subject interesting. He vividly explained the different animation application. And again, animation used in Prakriti and Ahar Varga. He nicely showed the animation video. Thank you, Dr. Prabodh Yaro Ward, for your excellent talk. Next, I want to offer my sincere thanks to Dr. Boyddo Hemango V. Raghomi. He talked about National Simplicity Day. He vividly described regarding the simplicity and whatever mentioned in our Ayurvedic classic regarding simplicity. He mentioned that if we keep ourselves nearer to the nature, then we keep our body healthy. He nicely, if you want to development, then simplicity is highly required. Simplicity, keep your body healthy and free from diseases. Thank you, Dr. Hemang V. Raghoni, for your nice deliberation. Thank you to all. Namaskar.
Excellent program, nice program, unique subject, unique topic. Thanks for your valuable support to all speakers. नमस्कार राघवानी जी, रवर जी और हमारे हेबर जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और ऑफ द डाइस भी आलोकनाथ त्रिपाठी जी और जो भी डॉक्टर जुड़े हुए हैं सभी को हमारा नमस्कार। कल एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है पंचगव्य, गोल्ड, मिथ और फैक्ट। ये एक हमारे बंगाल में बड़ा ऑब्जेक्शनेबल चल रहा है कि ये जो पंचगव्य में गोल्ड बोलते हैं, वेदर इट इज ट्रुथ और मिथ। So tomorrow is the cow appreciation day and we will organize the webinar on Panchgavya, gold, myth or fact. Thank you very much. Good night to all. Good night. Okay, good night.